ଏକ ଶାନ୍ତ ଭଙ୍ଗିଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫୁଲେଲି ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମ୍ରାଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶି ଦେଉଥିଲା ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୀରଣ ଜୀବନର ଏକ ଅହେତୁକ ମାୟା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତାକୂଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ। ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଅତୀତର ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସୀ ଜୀବନର ଶପଥ ନେଲେ, ସହଯାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟତମା ଜାନକୀ, ଭାତୃଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ, ଏହି ରାଜପଥ ସେଦିନ ଅଗଣିତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁରେ ସିକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କି ସେ ବୁକୁ ଫଟା କ୍ରନ୍ଦନ, ଜଟା ବଳକଳ ପରିଧାନ କରି ସୁମନ୍ତଙ୍କ ରଥରେ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ। ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ପିତୃତ୍ୱର ବିକଳ ଚିତ୍କାର, ହାୟ ରାମ ହାୟ ରାମ। ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ହୃଦୟ ବିଦାରକ କ୍ରନ୍ଦନ, ପ୍ରଜାକୁଳଙ୍କର ମମତାର ଅଶ୍ରୁ। ବନବାସର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ। ସୁମନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଗୁହକଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା, ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଆତିଥ୍ୟ, ଚିତ୍ରକୂଟରେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୃଗ ମାରିଚ, ଜାନକୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କୁଟୀର ତ୍ୟାଗ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାବଣର ସୀତାହରଣ। କ୍ରମେ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କପାଳର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଘନୀଭୂତ ବିଷାଦର ଛାୟା। ଚିନ୍ତାର ଆବର୍ତ୍ତ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ହଠାତ୍ ସରଜୁର ଫେନିଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଦେଖାଦେଲା। ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା। ଫେରି ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏକ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଏ ତୁମେ? ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଅଶରୀରୀ, ମୁଁ ରାବଣ। ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ, ଅନାଚାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଧର୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁ ଦଶାନନକୁ ଆପଣ ହତ୍ୟା କଲେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଋଷି ରକ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବଂଶଧାରାର ଦାୟଦ ସେ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପୀଡ଼କ ରାବଣତ୍ୱର ଅଭିନୟ ତଳେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତାର ଫଲ୍ଗୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତାହା ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ମୁଁ ସେହି ରାବଣର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ରାବଣ କଣ ଓ କାହିଁକି? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସମସ୍ତ କଳଙ୍କରେ ମୋତେ କଳଙ୍କିତ କରି ରାମାୟଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଓ ସଦ୍ଗତି। ବିସ୍ମୟ ବିଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାବଣ, ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇ ପାରିବ ତୁମର ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ? ପ୍ରଭୁ, ସେ ଏକ ବିଷାଦର ସମୟ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପିତୃଭୂମି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ। ସ୍ଥାନ ହେଲା ପାତାଳର କେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ବିବର। ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଧନପତି କୁବେର ହେଲେ ଲଙ୍କାର ସମ୍ରାଟ। ରୁରୁଦ୍ୟମାନ ରାକ୍ଷସୀ ସତ୍ତା ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ମୋ ମାତା
को मातामह दिने तांकर निकषा को डाकी कहले केवल तू ही एही रक्षकूलर रक्षा कर्त्री मो आदेश राक्षस कूलर मंगल पाई तू ऋषि विश्वश्रवा को संतुष्ट करी संतान भिक्षा कर फलत तो संतान ही लंकार भातृअंश दाबी करि पारिबे कुबेरंक पाखरे कारण कुबेर ही विश्वश्रवांकर ज्येष्ठ पुत्र पितांकर अनुरोध रक्षा करी मो जननी निकषा प्रणय प्रार्थिनी हेले ऋषि विश्वश्रवांक पाखरे दीर्घ दिनर सेवा साधना और कर्तव्य निष्ठा फल से पाइथिले 3 पुत्र और 1 कन्या जो मानकर धमनी रे ऋषिर रक्त प्रवाहित हेउथिला ये अधम दशानन तांकर प्रथम पुत्र मातांक आदेश रे तपश्चरण करिवा पाई पुत्र माने सुदूर कैलाश यात्रा कले दीर्घ दिन तपस्यार फलस्वरूप मु लाभ करिथिली अद्वितीय शक्ति फल धनपति कुबेर लंका त्याग करी पलायन कले राक्षस माने पुणी फेरी पाइले तांकर अति प्रिय जन्मभूमि को गंभीर चित्तरे प्रश्न कले प्रभु रामचंद्र एवं उत्तर दिय रावण सौमित्री एवं मो अनुपस्थित रे असहाय जानकी को तुम्हें अपहरण कल कहीं यहाँ ही तुम हीन चौर्यवृत्ति और लालसार प्रमाण नुहे कि धीर गंभीर स्वर रे उत्तर देले दशानन यहाँ ही राजर्षि जनकंकर मो प्रति अनुरोध थिला सेदिन पुष्पक मु फेरी आसुली कैलाश कंदरु लंकागढ़ को मध्याह्नर प्राक्कल मिथिला उपरे अतिक्रम करुथिला मो रथ हठात राजर्षि जनक मते आह्वान कले आतिथ्य ग्रहण परे मो हाथ को टेकीदेले एक देवदुर्लभ कांति विशिष्टा कन्या अनुरोध कले ये कन्या सर्वगुण संपन्ना किंतु जन्मगत ग्रहस्फुट गणना सिद्ध जे से बंध्या हेब यह मु सह्य करि पारिबी नाही सविनय अनुरोध कले जदि यहाँ ही सत्य तेबे प्रतिकार दायित्व आपण उपरे मु अर्पण कली ऋषि श्रेष्ठ रावण से अनुरोध एड़ाई न पारी मु प्रतिश्रुति देली यथा समय प्रतिकार करी से दिनरू लंकार एक विस्तीर्ण अंचल रे बहु श्रम और अर्थ व्यय करी प्रस्तुत करी अशोक कानन किंतु माँ जानकी को सेठाकू नेबार कौनसी उपाय नथिला तेणु मु मारीचर आश्रय नेली बाध्य हेली आपण मानकर अनुपस्थित रे छलना करी माता को कुटीर सम्मुखस्थ मृत्तिका सह पुष्पक बोही आनिया पाई अशोक वन को कौन सी परिस्थिति रे माता को मु स्पर्श मध्य करी नाही यह केवल जनक को देइथिबा प्रतिश्रुति रक्षा करिवार कौशलपूर्ण अभिनय जहाद्वारा रावणर पौरुष लांछित कलंकित होइछि अशोक वनर परिवेश ही जननी को बंध्यात्व रक्षा करि पारिबो से पुत्रवती हेबे एथर कुहंतु रघुपति मो चरित्र क्यों भावरे कलंकित दीर्घश्वास त्याग कले प्रभु दासरथी अर्ध निमिलित चक्षुरे फुटी उठिला आउ एक प्रश्नवाची वैश्रवण तुम्हें तपश्चरण रे रत थिबा ऋषि मानंकु प्रत्यह निर्मम भावे प्रहार कर कहीं हसी उठिले दशानन यह ही थिला मोर दैनंदिन कर्तव्य मध्य श्रेष्ठ कर्तव्य प्रत्यह संध्या आराधना परे मु निघंच वन मध्य को जाउथिली एवं निर्मम प्रहार करुथिली तपचारी ऋषि मानंकु मु परीक्षा करी जानिथिली जे सेमानंकर तपश्चरण थिला एक लौकिक प्रक्रिया एकांत भावे अंतर रे राम नामामृत आराधन करी शिखि नथिले सेमाने श्यामल मनोरम नरपुंग भक्त प्रिय श्रीराम सेमानंकर एकांत ध्येय नथिले
तेणु सेमानंको सचेतन कर देउथिली निर्मम प्रहार रे। या फल से जो प्रभु राम रक्षा कर बोली विकल चित्कार करुथिले ताहा ही मु उपभोग करुथिले। यह ही सेमानंकर थिला अंतरर डाक। परवर्ती प्रश्न, तुमे देव विरोधी हेलो कहीं? ना प्रभु, मु देव विरोधी नुहे। स्वेच्छाचारी देवगण को कर्तव्य निष्ठा पाई मु लंका को बांधी आनी। इंद्र कर्तुक अहल्यां सतीत्व हरण स्वेच्छाचारितार प्रमाण नुहे कि? मु केबे काहारी अधिकार क्षुण्ण करी नाही, यथा इंद्रर इंद्रत्व किंबा जमर जमत्व। सेमानंको विश्वर कल्याण पाई कर्तव्यनिष्ठ कराइबा मो उद्देश्य थिला। लंकारे मो तत्वावधान रे ताही कराउथिली। शेष प्रश्नर उत्तर देय नैकेशेय। धार्मिक विभीषण को तुम्हें पदाघात कर लंकार बहिष्कार कल कहीं? प्रभु, ताहा मो चरित्र एक विस्मय जहा ए पर्यंत आविष्कृत होई नाही। मु जहा चाहे तार विपरीत आचरण करे, ताहा ही मोते लक्ष्यस्थल को नहीं जाए। विभीषण रामगत प्राण ताहा मु तार जन्म संस्कार रु जाने। से ता तपस्यार फल। विभीषण और मु उभय मुक्ति अभिलाषी हेले मध्य उभयंकर पथ भिन्न थिला। मु जाने दुर्बल व्यक्तित्व मध्यरे प्रेम भक्तिर स्थान नाही। से ही भक्त जे वीर। मु चाहिथिली पुरुषोत्तमंकर प्रतिद्वंद्वी होई मुक्ति लाभ करिबा, किंतु विभीषण चाहुथिला आपणक शरणापन्न हेबा पाई। तेणु ताकू उपयुक्त परिवेश जोगाई देवा पाई, साधनार सिद्धि पाई, आपणक चरण सरोजरे शरणागत हेबा पाई अभिनय करिथिली मात्र। कहंतु प्रभु राजीव लोचन, मु जदि विभीषण भली आपणकर शरणापन्न होई थांती, तेबे आपणकर देवदुर्लभ व्यक्तित्व पौरुष पूर्ण विकसित होई थांता तो। परंतु जदि मु केवल कठोर तपस्चरण करी आपण को संतुष्ट करिवार प्रचेष्टा करी चली थांती, तेबे वैकुंठ त्याग करी एही धूली धूसरित धरणी ऊपर को ओल्लाई आसी थांते तो। नव दुर्बादल यही श्यामल मनोरम शोभा पृथ्वीर कोणे कोणे विच्छुरित होई थांता तो। सेही प्रस्फुटित नीलोत्पल लोचन संदर्शन रे क्लांत शांत पृथ्वी शापमुक्त पापमुक्त होई थांता तो। आर्यभूमि देवभूमि वेदभूमि रो अगणित तपचारी जुग जुगर प्रतीक्षा पूरण होई थांता तो। एबे कहंतु रघुपति, मु पापाचारी उत्पीड़क लंपट देवद्रोही रावण अथवा पूत पौलस्तंग वंशधारार ऋषि विश्वश्रवांकर उत्तरदायक वैश्रवण। रघुपतिंक बदन सरोजरे फुटी उठिला एक स्मित हास्य रेखा। रामायणर तृतीय चरित्र कैवर्त। अश्वमेध यज्ञर पृष्ठभूमि अयोध्या आज आनंद मुखर हो उठी। कर्म चंचल प्रत्येक धूलिकणा गगन पवन मुखरित हो उठी। वेदर पूत पवित्र मंत्र देवता ऋषि और आचार्य मानकर पदरज लाभ करी पवित्र होइचंती अयोध्यार प्रजाकूल। उद्वेलित होई उठिछि पुण्यतया सरजुर वक्ष। प्रजाकूलंक जीवन रे प्रवाहित हेउछि राम राज्यर शांत फल्गु धारा। उपभोग्य होइछि जीवन। यज्ञशालार अनति दूर रे एक विस्तीर्ण सुसज्जित पीठ। देवता ऋषि आचार्य एवं निमंत्रित राजन्य वर्गों पाई
पदमर्यादा सूचक सज्जित आसन समस्तଙ୍କ दृष्टिर केन्द्रबिंदु रे मणिमुक्ता खचित आसन रे उपविष्ट अयोध्यार सम्राट प्रजानुरंजन प्रभु रामचंद्र पार्श्वरे सीतांकर एक सुवर्ण निखुण मूर्ति सते अबा राम सीतांकर एक जुगल चित्र एते आनंद मध्यरे चिंताकूल पुरुषोत्तम कपाळर रेखा कुंचित मस्तक सामान्य अवनत दृष्टि निबद्ध पार्श्वस्थ सुवर्ण सीतांकर मूर्ति उपरे जीवन रे केउ एक गुरुतर अभाव अपूर्णता कर्णपटहरे प्रतिध्वनित होई उठुची कहार एक परिचित स्वर गुंफित वेदनार अवगुंठन तलु फुटी उठुची कहार एक अश्रुल लपन जहांकु से दिन बिना विचार रे कलंकर बोझ लदी देई निर्वासन दंड देइथिले बिना आपत्ति रे बिना अभियोग रे आदरी नेइथिले से स्वामींकर सेही निर्मम आदेश अंतसत्ता निराश्रया जानकींक निर्वासन परे आज रघुकुल तिलकंकर अश्वमेध सुवर्ण सीतांकु नेई सते जेपरी गुमुरी उठुसी अंतर मध्यरे जानकींक भावमूर्ति हे मोर प्रभु मो प्राणर देवता मो मृत्यु जदि आपणकर कलंक भंजनर पृष्ठभूमि हुए तेबे ए जीवन सार्थक होइछि साधनार सिद्धि होइछि प्रवेश कले दुईटी ऋषि कुमार देवदुर्लभ कांति अदूर महर्षि वाल्मीकि प्रार्थना कले राजा देश रामायण गान करिवा पाए कुलमंडन कले ऋषि कुमार गंड लग्न हेला कुमार दुहिंकर मुख बही पड़िला दुई बिंदु आनंदाश्रु एक शून्यता परिपूर्ण हेला महर्षि वाल्मीकि इंगित कुमारद्वय प्रभुंक सम्मुखरे रामायण गान आरंभ कले रामगाथा रामायण नायकंक उपस्थिति रे गुण कीर्तन परिवेश क्रमे गंभीर होई उठिला सभास्थ समस्तंकर लोलुप दृष्टि निबद्ध हैला ऋषि कुमार गान भंगी रे कर्ण रसायनित होई उठिला हृदय नाची उठिला रामायण गानर ताले ताले ताणु भली बसी थांती रघुकुल तिलक निज जीवन इतिहास मानस पटरे भासी जाउथाए गोटिक परे गोटिए विगत जीवनर चित्र अपुत्रिक पिता दशरथ ऋष्यशृंग कर्तृत्व पुत्रेष्टि यज्ञ माता मानकर चरुभक्षण चारि भ्राता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाल्यकाल पितृस्नेह विश्वामित्रंकर यज्ञ रक्षा पितांक आदेश रे वनगमन आसुरी प्रभाव यज्ञ रक्षा अहल्या साप विमोचन कैवर्तर गंगा जलरे पद प्रक्षालन गंगा पारी हेबा परे मिथिला गमन सेदिन रामायण गान एइठारे स्थगित रहिला ऋषि कुमार को नहीं माता कौशल्या पाखरे विजे कले दाशरथी परदिन प्रत्युष शिशिर सिक्त पुष्प बाटिकार एकांत भावे उपवेशन करिसंति प्रभु राजीव लोचन प्रवेश कले सृष्टिकर्ता कर्ता ब्रह्मा आसन परित्याग पूर्वक ब्रह्मा को पाछोटी आणले देवभक्त रामचंद्र उपवेशन परे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा निवेदन कले प्रभु आपण भूलीगले से दिन से आकुति जो दिन दान वीर बलि द्वार रे बामन रूपे भिक्षा मागी जाइथिले तीन पाद भूमि एक पाद पृथ्वी व्यापी गला द्वितीय स्वर्गलोक आच्छादन कला तृतीय बलिमस्तक स्थापन करी आपण जेतेबेले विश्व वरेण्य त्रिविक्रम रूप धारण करथिले देवगण ऋषिगण
ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ବହୁଦିନର କମଣ୍ଡଳୁରେ ସଞ୍ଚିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ମୁଁ କମଣ୍ଡଳୁରୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଢାଳିଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସରୋଜରେ, କିନ୍ତୁ କି ସେ ମାୟା, ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଖଧୌତ କରି ନପାରି କୋଣରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲା। ତା ସହିତ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୋର ପଦଧୌତ କରିବାର ଲାଳସା। ବିଷାଦ ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ସତ୍ତାକୁ ଉପହାସ କଲା। ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ମାୟା କରି ମୋତେ ପଦଧୌତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଆକୁତି ନିକଟରେ ଭଗବାନ ସବୁଦିନେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ସୁଦିନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ପଦ ବଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ, ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସେହି ଚରଣ ସରୋଜ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବି, ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିବି, କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥିବେ। ସେଦିନ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଥିଳା ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଗଙ୍ଗା ପାର ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ ଉପରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଏକମାତ୍ର ନାବ ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତ। କଣ୍ଠ ଫଟାଇ ଡାକିଲେ ସୌମିତ୍ରୀ, ବଧିରର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କୈବର୍ତ୍ତ। କୂଳକୁ ଫେରି ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଋଷିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପାରି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରଜ ଲାଗି ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ନାରୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ନୌକା ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାରୀ ହୁଏ ତେବେ ବଞ୍ଚିବାର ଅବଲମ୍ବନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ସେଦିନର ଅଭିନବ କୌଶଳ। ସେଦିନ କୈବର୍ତ୍ତର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ହିଁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପଦଧୌତ କରିଦେବ। ପତ୍ର ଫୁଲର ସଜ୍ଜିତ ବିଛଣା ଉପରେ ଉପବେଶନ କରାଇବ, ଯେପରି ପଦଯୁଗଳ ନୌକା ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆପଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପଦ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କଳସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମନର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ତୃଷ୍ଣାକୁ ତୃପ୍ତ କରି ସେଦିନ ସେ ପଦଧୌତ କରିଥିଲା। ଜୀବନ ପାତ୍ର ଭରି ପାନ କରିଥିଲା ଚରଣାମୃତ। ଲତା ପୁଷ୍ପର ଗୁଚ୍ଛ ଉପରେ ପହଣ୍ଡ ମଣାଇ ଉପବେଶନ କରାଇଥିଲା ସେ। ଗଙ୍ଗା ପାର ହେବାର ପରେ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ରୂପେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ। ହେ କେଶବ, ଆପଣ ଏ ମହାବିଶ୍ୱର କୈବର୍ତ୍ତ, ତେଣୁ ମୋ ମୁକ୍ତି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ରାମାୟଣର ବଳିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭାତୃଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ୍ୟାଗବୀର ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଭକ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ, ସତୀ ଶିରୋମଣି ଜାନକୀ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଏକ ନଗଣ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଯାହାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଚରିତ୍ର ନଗଣ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯେ ମହିୟାନ ଏବଂ କେବଳତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ, ତାହା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ରାମାୟଣ ଶ୍ରବଣ କରି ମୋର ଏହା ହିଁ ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ସେହି କୈବର୍ତ୍ତ ରୂପୀ। ବାମନାବତାରରୁ ପଦଧୌତ କରିବାର ଲାଳସା ମୋତେ କୈବର୍ତ୍ତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭକ୍ତର ଅଳି ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର୍ଥକତା। କୈବର୍ତ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଯେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ରାମାୟଣର ଅଗଣିତ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଚରିତ୍ର ଯଦି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ତେବେ ରାମାୟଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ କି? କହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦାଶରଥୀ, ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତର ଦାବି।
पुरुषोत्तमଙ୍କ ଅଧରରେ फुटी उठिला एक स्मित हास्य रेखा। सुदूर अतीतर केउ पुरातन स्मृति प्रतिबिंबित होई उठुथिला मानस पटरे। अतीत कथा कहर चतुर्थ भाग। चरित्र प्रभु रामचंद्र पुरुषोत्तम रामचंद्र। पवित्र सरज कूलर एक म्लान संध्या। अस्तगामी सूर्य बक्षर कालीमार प्रलेप। स्थिर सांध्य समीरण निस्तरंग सरोजुर जलराशि। स्तब्ध मुनिकंठर वेदध्वनि। विहंगर काकली। गोष्ठ बाहुड़ा वेणुर मूर्छना। निस्पंद प्रकृति। एक प्रस्तर खंड मंडन करी स्थिर दृष्टि रे सुदूर दिग्बलय आड़े चाहि रही थांती रघुकुल तिलक प्रभु रामचंद्र। जीवन रे स्पंदन नाही, प्राण रे आवेग नाही। स्कंदच्युत तुणीर कार्मुक। गंड देश रे कालीमार रेखा। जीवन पात्र जेपरी निशेष होई आसुची पीयूषर धारा। जीवनर समस्त कारण लीन होई आसुची परम कारुणिक ठारे। अद्भुत ए सृष्टि आउ स्रष्टार मिलन। धीर पदक्षेप कले। दृष्टि फेराइले राघव। भाराक्रांत हृदय प्रश्न कले महर्षि वाल्मीकि, आपण को रचित रामायण ग्रंथ रे आउ कौन लिपिबद्ध करिया को बाकी रहिला? पति प्राणा जानकी अभिमान रे विदाय नेले। वनवासर समस्त कष्ट आदरी नहीं रावण गृहर दीर्घ बंदिनी जीवन सह्य करी अयोध्या को फेरी थिले। अनेक सुख स्वप्न नहीं अंतसत्वा जानकी को प्रतिबदल रे मिलिला निर्वासन दंड। राजर्षि जनकंकर अलिअली कन्या, धार्मिक वीरश्रेष्ठ दशरथंकर ज्येष्ठ वधू, पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर अर्धांगिनी। भाग्यर की विडंबना। अभिमान रे झरी झरी माता वसुधांक कोଳରେ शेषरे आश्रय ग्रहण कले। अनुज लक्ष्मण वनवासी जीवनर सहचर, सेवार मृत्युमंत प्रतीक। 14 वर्ष अनाहार अनिद्रा रे निजकू तिल तिल करी दग्ध करी चरम त्यागर आदर्श से देई गले। कौन हैला तार परिणति? अयोध्यार काल पुरुषंक प्रवेश। सत्यबद्ध द्वार रक्षी से दुर्वासांक अभिशापरु अयोध्या को रघुवंश को रक्षा करिवा पाई प्रवेश करिथिले प्रकोष्ठ रे। तांकर आगमन वार्ता नहीं सत्य पाई त्याग कली प्राणर समित्री। से दिन अस्पृश्यित म्लान बदन रे विदाय नेले से गोटे जन्म पाई। एही सेही सरजू जहार फेनिल जलराशि को आलिंगन करी अभिमान रे आत्माहुति देइथिले से। जेउ भातृभक्त लक्ष्मण रामर छाया भली घूरी बुलुथिले जीवन परिधि रे प्रत्येक बिंदु रे से आज नाहंती। निस्व ए जीवन ये शून्यता मध्य आउ कौन लिपिबद्ध करिया को रहिला रामायण स्रष्टा? विशेष ए जीवनर धारा, शुष्क जीवनर पात्र, विषादित ए जीवनरु आउ कौन आशा करे आसिचंती मुनिश्रेष्ठ? प्रभु उत्तर देले महर्षि, रामायण रे आपणकर बलिष्ठ चरित्र चित्रण कला बेले अनेक क्षेत्र में मो बोध शक्ति हार मानिछि। अस्पष्ट होई उठिछि केतेक विशेष विधानर वैधता। आपणक निकटरे प्रार्थना मोते संशय मुक्त करंतु। प्रभुंकर गंभीर मुखमंडल गंभीरतर होई उठिला। कहंतु कहंतु रामायण स्रष्टा, त्यागपूत सत्यसंध श्रीराम चरित्र रे आपणकर संदेह केउठी केउठी? राजीव लोचन रे प्रश्न उठिला। धीर नम्र स्वर रे प्रश्न कले महर्षि वाल्मीकि, प्रभु जानकी को निष्कलंक चरित्र प्रतिपादन कला परे अयोध्यार सामान्य केते जन प्रजांक वक्तव्यरु
आपण तांकु जो निर्वासन दंड देले तार वैधता मो निकट स्पष्ट नुहे। अंतसत्वा जानकी आपण स्त्री भाव एवं अयोध्यार जड़े प्रजा भाव न्याय विचार पाइबा पई योग्य नथिले कि सीता को अवगत न कराई निर्वासन दंड देवा एक विस्मय मने हुए। पूत पवित्र सिंहासन आरोहण करने पूर्वर साधारण जीवनर धारा प्रजाकूलंकर वास्तव अभाव अभियोग तथा अत्याचारी शक्ति कबलरू सरल सहज जीवन को रक्षा करिवार शक्ति आहरण करने मोर 14 वर्षर साधना मु चाहिए मो संतान ए वंशर उत्तरदायद ऋषि आश्रम रे जन्म ग्रहण करू। ऋषि कुमार त्यागपूत जीवन आदर्श चरित्र सत्ता परिपोषक कर्म शिक्षा और दीक्षा अयोध्यार राजकुमार जीवन धारा को पुष्ट करू। यह ही मोर अंतर सिद्धांत थिला। सामान्य केते जन प्रजांकर विचार को ग्रहण करी मु सती साध्वी जानकी को निर्वासन देई नथिली। मो विचार रे अयोध्या सिंहासन दायाद वीरश्रेष्ठ सत्यसंध हुंतु एवं मो ठारू बलशाली हेबार योग्यता अर्जन करंतु। फलत प्रजाकूल रामचंद्रंकर वियोगरे मध्य आश्रयहीन हेबे नाही। एही अभ्रांत सिद्धांत आज फलप्रसू होईछि। अश्वमेध यज्ञर प्राक्काल रे मोते एवं मोर प्रजा भ्राता मानंकु परास्त करी श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करिसंति लव कुश। नम्रतार सहित द्वितीय प्रश्नर अवतारणा कले वाल्मीकि। प्रभु तपस्यारत शूद्र मुनि शंभुक को निर्मोह भावे आपण हत्या कले कहीं? तपस्चरण कौन एक अपराध? उत्तर देले कारुणिक प्रभु दाशरथी। मोर जन्म धर्म संस्थापन पाए धर्म जीवनर भित्तिभूमि। जीवन पुष्ट हुए जन्मगत संस्कार एवं अर्जित संस्कार समन्वय। जदि जन्मगत संस्कार और अर्जित संस्कार तेबे जीवन उच्छृंखल हुए। यार प्रभाव व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में प्रतिफलित हुए। फलतः विपर्यस्त हुए व्यक्ति समाज राष्ट्र। प्रत्येक जीवनर सहजात संस्कार वंश धारे पुष्ट होता है। तेणु ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म, क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्व स्व वंशगत कौलिक कर्म रे व्यापृत होगा उचित। यह नुहे जे कौन सी वर्ण अन्न ठार निकृष्ट। यह ही वर्णाश्रम धर्म। यह फल सहजात संस्कार अर्जित संस्कार परिपूरक हुए। फलतः बलिष्ठ सामाजिक चरित्र गढ़ी उठे। समाज को वर्धिष्णु करी तोलिया पाई वर्णाश्रम धर्म ही पालनीय। शंभुक को हत्या करी राम राज्य रे यदि वर्णाश्रम धर्म पालन करा न जाए तेबे पवित्र वंशधारार अधोगति हेब एवं पृथ्वी रे वर्णशंकर जन्म नेबे। धर्मर सुरक्षा पाई शंभुक को हत्या करिवा व्यतीत मोर अन्न पंथा नथिला। प्रभु निघंच लताकुंज मध्यरु सर निक्षेप करी बाली को हत्या करिवा कि भावरे नीतिसंगत यह स्पष्ट होई पारला नाही। उत्तर देले कमल लोचन। गृहस्थ्य और पारिवारिक जीवनर धारा व्याहत हेले धर्मर विच्युति घटे। कुलस्त्री माने दूषिता हुंती। भविष्यत वंशधर जीवन केन्द्रच्युत हुए। बाली भातृभक्त सुग्रीवं को राज्यरु बहिष्कार करिवा एवं भातृवधू को बलात्कार उपभोग करिवा धर्मर ग्लानि नुहे कि? जार विचार मृत्युदंड। बाली को सम्मुखर शराघात नक लुचि रही शराघात करिवार अन्य एक कारण अच्छी। बालीर प्रतिद्वंदी ता सम्मुख को गले तार अर्धशक्ति से अपहरण करिथाए। फलतः प्रतिद्वंदी हीनबल हुए और परास्त हुए। तेणु निजको लुकायित रखी सर निक्षेप करने व्यतीत बाली निधनर अन्य उपाय नथिला। प्रभु प्रथम अवकाश रे बाली सुग्रीवंक युद्ध बेले आपण बाली हत्या करि पारथांते तो
किंतु प्रथम थर सुग्रीव को कठोर मुष्टिघात सह्य करने को आपण देले कहीं सी एक रहस्य उत्तरिले रावणारे प्रथम थर बाली युद्ध यात्रा कला बेले तारा अनुरोध करिथिला जे सुग्रीवर सहाय स्वयं गोलोक बिहारी नारायण तेणु युद्धरु निवृत्त हेबा पाए बालीर उत्तर थिला नारायण एका सुग्रीवर हेबे कहीं मो हृदय मध्य मु तांकु ही बहन करी युद्धर यात्रा करुछि फलत प्रथम युद्ध बेले मु उभयंग हृदय मो प्रतिछबिर संधान पाइथिली तेणु शराघात करने असंभव हो उठिला किंतु द्वितीय बार युद्ध को आसिला बेले अहंकार आत्मप्रतिष्ठार भाव बालीर हृदय आच्छन्न करिथिला प्रथम युद्धर विफलतारू से हृदयंगम करिथिला जे मु पुरुषोत्तम नुहे तेणु निज पौरुष उपरे प्रतिष्ठित होई से युद्ध यात्रा करिथिला फल शराघात करी हत्या करिबा मो पक्षर सहज हैला परवर्ती प्रश्नर अवतारणा कले मुनिश्रेष्ठ प्रभु वनवास समय दंडकारण्य मुनि माने आपणक मनोरम रमणीय रूप संदर्शन रे मुग्ध होई भ्रमवशत निजको नारी भाव रे कल्पना करी जटा गुड़िक बेणी बांधिबा आरंभ कले एवं निजर बक्ष आवृत्ति करने को चेष्टा कले ये भ्रम अवलोकन करी आपण सेमानंकु बर देले द्वापर युगरे सेमाने गोपी जन्म नेबे एवं आपण गोपी वल्लभ कृष्ण रूप से सेमानंकर मनमोहन करिवे कहंतु प्रभु सुपर्णेखा जने नारी विधवा मध्य आपण को रूप रे मुग्ध होई प्रणय प्रार्थी हेबा असंगत नुहे जो रूपरे ऋषि मुनि मानंकर मतिभ्रम हुए से रूपरे जने साधारण नारी सम्मोहित होई प्रणय प्रार्थी हेबा केउ भावरे अस्वाभाविक एवं असंगत यार दंड स्वरूप आपण अनुज लक्षण द्वारा तार नासाकर्ण छेदन करिबा नारीत्वर अवमानना एवं अमर्यादा नुहे कि मर्यादा पुरुषोत्तमंकर ए आचरणर वैधता मो पाखरे अस्पष्ट प्रभु उत्तरिले दासरथी मुनिश्रेष्ठ सुपर्णेखा मो पाखरु जहा चाहिथिला ताहा पाइबार संकेत देइथिली मात्र पुरुषोत्तमंकर अदेय किछि नाही सुपर्णेखा चाहिथिला मोते पति रूपे पाइबा पाई तार कर्ण छेदन करी यही संकेत देली जे मोते पाइबा को हेले ए कर्ण रे हरिनाम हरिगुण कीर्तन श्रवण करी राम नाम श्रद्धार सहित श्रवण मनन करी साधु मान संग करी सत्संगर आलोचना मनोनिवेश पूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित श्रवण करिबा तार नासिका छेदन करी ए प्रकार संकेत प्रदान कली जे चक्षुदय नासिकार निम्न दृष्टि फेराई ऊर्ध्व दृष्टि आज्ञा चक्र रे मो रूप ध्यान करी ध्यानस्थ हेबा द्वितीयतः नासिका छेदन फल श्वासक्रियार वेग वृद्धि सहित नाम जपर वेग वृद्धि करी ध्यानस्थ हेबा पाए अवशिष्ट जीवन तपस्वी जीवन रे बितावा पाए फलत परजन्म रे मते स्वामी रूप रे पाइबा संभव हेब सुपर्णेखा मोर ए प्रकार संकेतर अर्थ बुझीथिला एवं भाई रावण को मो आगमन वार्ता देवा परे प्रयाग तीर्थ रे कठोर तपश्चरण पूर्वक अवशिष्ट जीवन यापन करी देह त्याग कला या फल द्वापर जुगरे से कुबुजा रूपे जन्म ग्रहण करिवो एवं जेतेबेले भाई बलराम सहित मु कुष्ठ रूपरे मथुरा दांडरे गोपाल पुओं सहित ढली ढली चलुथी बांक चोलरे केकीपुच्छ दोलित हेउथिबो सिंगा वेणु वादन पूर्वक गोपाल पुओ माने क्षमता नृत्य करुथिबे
ଅଗଣିତ ମଥୁରାବାସୀ ସେ ମନମୋହନ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବେ। କୁବୁଜା ମୋତେ ଭେଟିବ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନର ସମ୍ଭାର ନେଇ, ମନ ଭରି ମୋ ରୂପ ନୟନ ମନ ସାର୍ଥକ କରି ଆକୁତି ଜଣାଇବ। ମୋର ମନୋରମ ରୂପ ସମ୍ଭାରକୁ ଟୋପି ଟୋପି ଚନ୍ଦନରେ ଭୂଷିତ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଆସିବ, ଯେଉଁଦିନ ତାରି ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାରି କୁବ୍ଜରେ କର ପରଶି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ମନମୁଗ୍ଧକର ରୂପରେ ତାକୁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦେବି। ସେଦିନ ସେ ଚାହିଁ ବସିବ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ମୋ ଗୃହାଙ୍ଗନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ତାହା ହିଁ କୁଷ୍ଠ ଅବତାରରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି କୁବୁଜା ଉପଭୋଗ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଦେଇଥିବା ସଂକେତ। ସେହି ରାତ୍ରି ତାର ଜୀବନର ଶେଷ ରାତ୍ରି ହେବ। ମୁକ୍ତି ଓ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ନାରୀତ୍ୱର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସରଜୁ କୂଳର ବୃକ୍ଷରାଜି ଓ ଲତାକୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧାର ଜମି ଆସିଥାଏ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଦାଶରଥୀ। ଏହି ସେହି ସରଜୁ ମୋ ଜୀବନର ସାଥୀ ଓ ସାକ୍ଷୀ। କାଲିକୁ 11,000 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଘଟିବ ଜୀବନରେ ଧରାବତରଣ କରିବା। ତେଣୁ କାଲି ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହି ପୁଣ୍ୟତୟା ସରଜୁ ନୀଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ରାମାୟଣର ଶେଷ ଚିତ୍ର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା ରାମାୟଣ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟ ଗଭୀର ମାନସିକ ବେଦନା ବହନ କରି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କ୍ରମେ ରାମାୟଣର ଶେଷ ରାତ୍ରି ଗାଢ଼ରୁ ଗାଢ଼ତର ହୋଇ ଉଠିଲା। तेरा ही नाम है, लेना देना है क्या मुझे दुनिया से, तुझसे काम है। रंगी नजारे मिले में किनारे मिले, दिल के सहारे जो तू आ गया, जो तू आ गया। सपना सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। क्यों सजना पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। क्यों सजना पे दिल आ गया।